So after that slide, now previous part 1 of chapter number 1 of chemistry of class 10th, है ना, science. So now after that, after part 1, है ना, we have completed half of the portion, half of the chapter, ना. Now we are just what we are doing in previous slide. We have done the chemical equation, chemical reaction, है ना, types of reactions. So after that, now endothermic, after endothermic reaction we are having this exothermic reaction, है ना. This is now means last match the last line, burning of natural gas methane, है ना, the chemical reaction we have given some match from that, and after that you will have to give the heading exothermic reaction, है ना. Last line we have what we have written, last line, last notes. We have prepared the last notes with last video that I have uploaded on the YouTube channel, and after that this match the last line, burning of natural gas. This is last line is written. Okay, after that you will have to give the heading exothermic reaction in capital letter with double underline. Again and again I am telling the same thing. Okay, so one confusion is there, so many students still asking. Now this is the date we are having, this is today, what the date we are having actually, 5th of May, है ना, Tuesday. Still the students asking me which type of notebook we are making, we have to make, है ना. You have to make a double sided notebook, I have told you. And those students who are not active, who are not actively participating in this curriculum, just be active, just participate actively and do your work neatly. Prepare yourself better for the board examination, है ना. Whatever is being uploaded on the YouTube channel, just be active on that, है ना. Make your notes properly on time, है ना. After opening the school, I will check each and every word of your notebook. Okay, if whosoever work is not completed, then punishment will be given, because we are working hard here to make you understand each and every term. So this is the next video. I'm starting with exothermic reaction. Now the times next type of reaction is this. So this is exothermic reaction. In this exothermic reaction, actually an exothermic process releases heat and causes the temperature of the immediate surroundings to rise. The rice, potatoes and bread we each contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen into the cell of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. Is an exothermic reaction. Glucose C6H12O6 is the formula of glucose here, aqua solution, and with the 6 atoms of oxygen we reacted, and what we have received, this carbon dioxide, hydrogen gas is released plus energy. Okay, so this is the reaction, and this is known as respiration reaction also. Okay, so now we are having the next slide of endothermic reaction, guys. This is endothermic reaction. In endothermic reaction, an endothermic process absorb heat and cool the surroundings. The decomposition of vegetable matter into compost is an example of endothermic reaction. Actually, what is this here in this video? What we have seen that in exothermic reaction, the respiration reaction actually we have studied about, and now in this endothermic reaction, like decomposition of, like vegetable waste we are having, vegetable matter we are having, and we are decomposing that. So that is the example of this decomposition, endothermic reaction. Okay, so after that we are having the next heading of this slide, decomposition reaction. In meanwhile, I am just giving you the 1 minute to just write it down in your notebooks. So write it down in your notebooks. Who haven't started preparing the notes, please start preparing it. And meanwhile, if you're getting any problem, any query, the students are asking me on WhatsApp, they are messaging me, so you can also message, or you can directly contact. The number is being given on the group also, so you can contact to me, or you can ask any query, any question related the notes you are having, related chapter summary, question answers if you are having. One thing more I just want to add in this, I'm not giving you the question answers only, I'm making you prepare the notes here. But when the classes will begin,
schools were open, I will give you the question answers also of the chapters, or I will just make the separate video after finishing of this chapter, है ना, for the question answers. I will give you the question answers also. Okay, so exercise work is very much important, as MCQ is being also asked in the board, so accordingly I will give the MCQs also, है ना. So this is the process. MCQ भी आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो मैं आप लोगों को जो है MCQ भी दूंगा, और अलग से करने के लिए इसके अलावा जो है क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी नहीं कराए हैं, वो मैं कराऊंगा. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो एब्जॉर्ब करता है. अच्छा, इट इज़ बीइंग मैसेज गिवन टू मी or instruction given to me that I'll have to make you understand in Hindi also. 70% I'll have to use the Hindi, because so many students of each and every level we are having in the class and who are studying here, so that everyone could get my point, everyone can understand my point, so accordingly I'll have to explain. So I'm using Hindi now because it is being ordered. Okay. सो क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें ये प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, है ना. ये क्या करता है, जो हमारी सराउंडिंग है उसे कूल मतलब ठंडा कर देता है ना, जो भी हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. ये हमारा जो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है. इसके अंदर जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ाया ऊपर, है ना. उसके बाद में जो था हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, सॉरी, है ना. ये क्या है कि एक्चुअली डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे. इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करता है ना, सिंपल प्रोडक्ट देने के लिए, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स डिकम्पोज होना. डिकम्पोज मतलब टूटना, है ना, कोई हार्ड चीज़ को सिंपल में तोड़ना, ये डिकम्पोजिशन कहलाता है. डिकम्पोज हो जाता है कोई भी सब्सटेंस जो होता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये हमारी ये डेफिनेशन तैयार की गई है कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना. जब सिंगल जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट देने के लिए, है ना, दैट इज़ कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. ओके, सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आफ्टर दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन वी आर हैविंग द इक्वेशन, है ना. फेरस सल्फेट एग्जाम्पल ऑफ decomposition reaction, we are having like ferrous sulfate equation. I think it is in the next slide. So meanwhile you can write it down. Next slide we are having a ferrous sulfate. I am giving you the example of decomposition reaction. Actually मैं decomposition reaction का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ दूसरी स्लाइड में. ये हमारी दूसरी स्लाइड आ चुकी है. इसमें क्या है गाइज, देखिए सही से देखिए, इसके अंदर जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. क्यों, जब हम उसे हीट दे रहे हैं, हीट के प्रेजेंस में जो है वो फेरिक जो सल्फेट है, जो फेरस सल्फेट है, वो फेरिक ऑक्साइड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. आफ्टर दिस फेरस सल्फेट FeSO4, you'll have to write the equation in the same way, है ना. After the this arrow, on arrow you'll have to write the heat, then this is Fe2O3 gas ferric oxide is producing, and with sulfur oxide, okay, this is the gas is releasing with 3 atoms of oxygen and 2 atoms of oxygen separately. After that lead, Pb is the symbol of lead. This is lead nitrate, NO2, है ना. After this nitrate, this gas is, है ना, combined with lead oxide and forming lead oxide. This is the equation, है ना. After this we are having white silver chloride that turns gray in sunlight, and this is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. Now this is the equation written down, 2AgCl sunlight arrow 2Ag plus Cl2. you'll have to write it down. आपको ये सब चीज़ें लिखनी है अपनी नोटबुक में, इसी तरीके से लिखना है, ये सारी इक्वेशंस तैयार करनी है. और इसके साथ साथ ये जो एग्जाम्पल ऊपर समझाए गए हैं, जो फेरस सल्फेट है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, किस तरीके से ऑक्सीजन एटम्स टूट रहे हैं, है ना, ये सब कुछ हमें इसी तरीके से मैनेज करना है. और इसके साथ साथ में एक और एग्जाम्पल है हमारे पास में,
एक और इक्वेशन है AgBr जो है वो, ठीक है, ये हमारा सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। ऊपर हमने सिल्वर क्लोराइड जो था वो टर्न हो रहा था, नीचे सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, ये हो रहा है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये जो रिएक्शन है, ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर यूज़ होता है ये चीज़। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, वाइट ब्लैक एंड वाइट ना, कलर्ड होती है एक तो, और ब्लैक एंड वाइट होती है, तो दैट इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो इस स्लाइड में अभी सही से दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आएगी, है ना, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें उसमें है ये पूरी रिएक्शन। तो अब ये जो है इसके नीचे से उसमें से नोट कर लेंगे, ठीक है, इसी के आगे से। तब तक ये आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ये मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ रही है ना, इसके अंदर एक सेकंड एग्जाम्पल इसके अंदर क्लियर है, इसके अंदर कट गया ये, ठीक है, थोड़ा एडिट होते हुए। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें ये सबसे ऊपर दोनों इक्वेशन मैंने दोबारा से बता रखी है, देखो 2AgCl, है ना, 2AgCl2। दूसरी इक्वेशन AgBr मैंने लिखा रखी है, दोनों रिएक्शन जैसे कि नीचे मैंने नोट पॉइंट दे दिया है, ये दोनों यूज होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विद डबल अंडरलाइन विद कैपिटल लेटर यू हैव टू राइट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है नेक्स्ट हेडिंग है, ये मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन, है ना, मैं समझा देता हूँ पहले पढ़ने से पहले। इसके अंदर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, मतलब डिस्प्लेस जो होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह पर उसे रख देना, डिस्प्लेस करना कहलाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। एक्चुअली मेरी ये वॉइस जो है वो ज़्यादा जोर से नहीं आएगी, आप ईयरफोन लगा के इसे सुन लेना, क्योंकि दिस इज़ अ होली मंथ ऑफ रमज़ान इज़ गोइंग ऑन and I am fasting today, so it will not be easy for me to speak louder, and I am also suffering from stone pain, having severe condition, so until also I am just doing the video, बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी उससे सफ़र करने के बाद भी, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और आप लोगों का किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज़ करते रहें, ठीक है। ये रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें रोज़े रखे जा रहे हैं और इसी वजह से थोड़ा सा आवाज़ जो है उसमें धीमापन आ जाता है इंसान के, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है वो लो हो जाता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट वी विल फोकस ऑन आवर स्टडीज़। सो टॉपिक के बारे में आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर लौट कर। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, ठीक है। और इसमें जो मेटल और नॉन मेटल हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। नीचे रिएक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है, दोनों रिएक्शंस आपको उतारनी है ऐसी की ऐसी, ये रिएक्शंस एक्सप्लेन की गई हैं और आप लोग ये रिएक्शंस अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट से ही समझ में आ रहा है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्प्लेस कर रहे हैं हम एक, जो बस एक टर्म याद रखनी है इसमें, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को, जो कम रिएक्टिव कर सकता है ना, उसे रिप्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब कमज़ोर आदमी को जो ताकतवर आदमी होता है वो हरा देता है ना। एक ट्रिक है इसे याद करने के लिए। तो इसलिए जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चंस एग्जांपल दे रखा है मैंने इसमें, ठीक है। जैसे आयरन का दे रखा है कॉपर सल्फेट के साथ में FeSuSO4, इसमें जो आयरन है ना, ये कॉपर जो है वो अलग हो रहा है, कॉपर जो है वो अलग हो रहा है, सल्फेट इसके अंदर जुड़ा दो, ठीक है, ये कॉपर अलग हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेड का भी दे रखा है हमने, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को अपनी नोटबुक में डालनी है, इसे आप लोग उतार लेना अपनी नोटबुक में। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो दूसरी टाइप की रिएक्शन है, इसके अलावा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, और इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आप डबल अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है इसके अंदर कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। इसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इसे हम डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें अदला बदली हो जाती है, मतलब रिप्लेस हो जाते हैं ये चीज़ें, है ना, रिप्लेस कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, इस केमिकल रिएक्शन में दो कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, है ना। जो पॉजिटिव आयन है, मतलब जो कैटायन जो आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और जो एनायंस है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव आयंस होते हैं। तो और जो नेगेटिव आयंस होते हैं दोनों, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं ये प्लेस को स्विच कर लेते हैं, मतलब रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, दो नए कंपाउंड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, या दो नए प्रोडक्ट बना लेते हैं एक्चुअल में। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। दिस इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि मतलब मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर रहा था, इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस दोनों हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, दोनों रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से, और दोनों आपस में रिप्लेस करने के बाद में क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट दो ही बना देते हैं, ठीक है, दो नए प्रोडक्ट इसमें तैयार हो जाते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इनका, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है या रिप्लेसमेंट जो होता है वो डबल हो जाता है ना, दोबारा हो जाता है, तो इसीलिए ये सिंपली हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके, इक्वेशन भी आपको नोट डाउन करनी है जो इजीली अंडरस्टूडेबल है। So I think you have noted down in your notebooks, all of you. So this is double displacement reaction. I think you have well understood the difference between the displacement reaction and double displacement reaction. Now coming to the next slide, we are having the next slide of this is redox reaction. Guys, see, this is redox reaction. Everyone knows this redox reaction. An oxidation reaction is a type of chemical reaction that involve a transfer of electrons between two species. An oxidation reduction reaction in any chemical reaction in which the oxidation number of a molecule, atom, or ion changes by gaining or losing an electron. Oxidation means the process involves gain of oxygen or loss of hydrogen, and I'll talk about the reduction. Then it is the process involve gain of hydrogen and loss of oxygen. This is explained by the equation also, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन हमें सबको पता है, दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। ऑक्सीडेशन हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ। इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो गेन होती है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाती है इसमें, ठीक है। और रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका रिडक्शन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन इसका उल्टा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये जो हमारा रिडक्शन है इस रिडक्शन के अंदर उल्टा हो जाता है ऑक्सीडेशन का। इजी याद करने वाली बात है, ऑक्सीडेशन से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन मतलब गेन किस चीज़ का हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो लॉस किसका होगा, हाइड्रोजन का, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरी बात ये कि रिडक्शन का मतलब किस गेन, इस रिडक्शन के अंदर इसके अंदर हाइड्रो उल्टा हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और यहाँ पे हमने नीचे इक्वेशन दिखा रखी है। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, देखिए
ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है हाइड्रोजन में। ठीक है, ये हम डेफिनेशन लिख लेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या कहेंगे, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया हमारे पास में, ये क्या सब्सटेंस हो गया जो ऑक्सीजन मतलब देता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गेन करता है। ठीक है, और इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिड्यूस्ड होता है अपने आप, है ना, और ऑक्सीडाइज होता है दूसरों की वजह से। ठीक है, ये क्या होता है, रिड्यूस तो अपने आप हो जाता है और ऑक्सीडाइज दूसरों की वजह से होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन विच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन करता है ऑक्सीजन। ठीक है, और हम इसे कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइज इट सेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स। ओके, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है अपने आप और ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है अदर्स। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है अपने आप और रिड्यूस हो रहा है दूसरों से। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो ऑक्सीडेशन है दैट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट रिडक्शन इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या इन्वॉल्व करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉस होते हैं, और रिडक्शन के अंदर जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे गेन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो इसे साइड बाय साइड हम लिख लेंगे, ये बेसिक है, हमने इससे पहले क्लासेस में भी हमने इसे पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में इससे पहले क्लासेस में हमने पढ़ रखा है और हमें पता है इसका प्रोसेस। उसके बाद में मैंने ये नोट पॉइंट दे दिया है, इससे ऊपर भी मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर दिया है ना, आयंस कैटायंस के बेस पे, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे मैंने ये बता दिया है पूरा, है ना, इसके थ्रू ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। ओके, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है और हम इसे नोट डाउन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप लोग को वीडियो पॉज करके इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। सो आई थिंक यू हैव ऑल रिटन दिस। ओके, सो इसमें क्या होता है जनरली, ठीक है, आप लोगों को बहुत ही नीट और इसमें जो क्वेश्चंस दी हुई हैं प्रॉपरली लिखनी है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप अगली नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। मुझे लगता है आप लोगों ने ये सब लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। मैं समय भी दे रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है, ताकि गलती ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कोरोजन। देखिए, कोरोजन और एनसीडीटी बहुत इजी है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कोशिश करी है कि बहुत शॉर्ट में इसे समझाऊं, है ना, क्योंकि ये 3 नंबर में आता है, ज़्यादा मार्क्स में नहीं आता है, और लॉन्ग में भी आता है तो पार्ट्स में आता है। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे समझाने की कोशिश करी है इसमें, और उसी हिसाब से मैंने आपको डिफ़ाइन करा है इसमें, और उसी हिसाब से मैंने डेफिनेशन तैयार करी है। अगर 5 नंबर में लॉन्ग में भी आता है तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, और 3 नंबर में शॉर्ट में आता है तो भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट गिव द आंसर। सो दिस इज़ अ कोरोजन वी आर हैविंग। कोरोजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, ये कोरोजन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल है रस्टिंग, आयरन को जंग लग जाता है। ठीक है, आयरन वैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जो रेड सब्सटेंस देखो, जो लोहे को जंग लग जाता है ना, लाल से कलर का सब्सटेंस आ जाता है। ठीक है, जंग क्यों लगता है, जब हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
ठीक है। तो बरसात वगैरह होती है, हम देखते हैं, ठीक है, तो जंग लग जाता है ना। तो जो मॉइस्चर के प्रेजेंट में जब ये आता है, जब ये आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, है ना, और मॉइस्चर से, मॉइस्चर मतलब बरसात है, पानी गीला है और ऑक्सीजन भी है एटमॉस्फेयर में, तो रिएक्ट करता है, तो ये रस्ट जो है, ये रेड सब्सटेंस है, ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है, रस्ट फॉर्म होता है। तो ये एग्जाम्पल है इसका कोरोजन का, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ये इनडायरेक्टली भी बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कोरोजन और रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस कोरोजन का यही प्रोसेस है, ये धीरे धीरे मेटल को, लोहे को ख़त्म कर देता है, खा जाता है, ठीक है। जब जिसको जंग लग जाता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं लोहा ख़त्म होता चला जाता है, पपड़ी बन जाती है, पूरी एक लेयर इसकी ख़त्म होती चली जाती है, ठीक है, ये अपने आप उखड़ता चला जाता है फिर। तो ये जो है ये कोरोजन कहलाता है, पूरा प्रोसेस कोरोजन कहलाता है, जो क्या होता है, स्लो कन्वर्जन होता है मेटल का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेंसिडिटी है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, हमने देखा है कि जो टेस्ट है, कलर है फूड मटेरियल का, कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज़ कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या कहलाई जाती है, जैसे कि नमकीन, बिस्किट वगैरह जो होती हैं, जो पैकिंग की चीज़ें होती हैं, ठीक है, और वैसे भी होती हैं तो सील जाती हैं, हमने देखते हैं बहुत सी नमकीन होती हैं, बिस्किट होते हैं वो सील जाते हैं, उनका कलर भी चेंज हो जाता है, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ रेंसिडिटी कहलाती है, ठीक है। टेस्ट और कलर जो है फूड मटेरियल का, जो मतलब ऑयली चीज़ें होती हैं, जो फैट कंटेन करती हैं, जिनमें ऑयल में, तेल में तली हुई चीज़ें होती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, उनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है जब उन्हें हम बहुत समय के लिए हवा में रख देते हैं, या बहुत समय के लिए एटमॉस्फेयर में खुला रख देते हैं, तो ये रेंसिडिटी कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये कॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, किस चीज़ की वजह से होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट का और ऑयल का, जो फूड में ऑयल प्रेजेंट है या फैट, तली हुई चीज़ें होती हैं हमारी, वो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मैंने इससे पहले टॉपिक में बता दिया है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, किस चीज़ का गेन होता है, किस चीज़ का लो, क्या चीज़ें लूज़ होती हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसे कैसे प्रिवेंट कर जा सकता है, क्या प्रिवेंशन है इसके लिए, क्या प्रिवेंशन मेथड स्टेप्स हैं, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं, बहुत सारे अचार आते हैं, कोई नहीं लगती है उसमें, है ना, ख़राब नहीं होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है, तो उस चीज़ से वो चीज़ ख़राब नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या करते हैं, हम स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर बाय फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन, हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिल करते हैं, कुरकुरे आते हैं, चिप्स आते हैं, पैकेट आते हैं, ठीक है, ये भरे हुए होते हैं, मतलब कि किसमें नाइट्रोजन फिल होती है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं फूड को ख़राब होने से, जब उसे स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखने से, तो ये रेंसिडिटी कहलाती है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्या कॉजेज़ हैं इसके, कैसे होते हैं, ये मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इसमें, जिस हिसाब से आता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अलग से, जिसमें इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसका प्रिवेंशन, इसके कॉजेज़ पूछे जाते हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी है कि द टेस्ट एंड कलर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, ये रेंसिडिटी कहलाता है। कॉज बता दिए इसके, इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। उसके बाद हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, 2 स्टेप्स मैंने प्रिवेंशन के बताए इसमें, कि बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर हम जो है डाल देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम इस फूड को स्टोर कंटेनर, जो फूड है, एयर टाइट कंटेनर में करके रख देते हैं, तो दीज आर द प्रिवेंशन, ठीक है। ये कोरोजन और रेंसिडिटी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जिन्होंने काम पूरा नहीं करा है वो इससे पहला वाला पार्ट देख लीजिए, इससे पहले पहला पार्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, शुरू से मैंने स्लाइड बना रखी है, साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर रखा है नोट्स के, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना पड़े, टाइम से आप मैनेज करते रहें और वर्क कंप्लीट करते रहें। जिन लोगों का छूट गया है वो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आ रही है, सब चीज़ समझ में आने योग्य है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, ओके, सो राइट इट डाउन। About the chapter number 1 of chemistry. So with this we have completed 2 chapters of science. Chapter number 1 of biology, life processes, and chapter number 1 of chemistry, chemical
completed notes. Those students who have not completed their notes, please rewind the video, watch again and again, and try to understand the topics and terms and start writing in your notebooks. Please note it down each and everything in your notebooks. Okay, this will be fruitful for you in the future. I'll check when the schools are open. I'll check each and every one of your notebooks. Your work should be completed. Okay, if you have any problem in this chapter, so you can comment in the comment section, or you can just consult to the concerned authority, and directly you can contact to me after taking the permission. I'll clear each and every doubt by making the video so that everybody can watch and have clearance. Okay. So I think you have well understood. No problem at all. If you haven't, then watch the video again and again. Try to understand the topics. Read the books. Then if you are unfortunate, because I am using very simple vocabulary, very simple terms is being used. No hard vocabulary I am using.